Welcome back to MS Model School online classes. I am taking Mathematics for class 10th, chapter 6, triangles. In video 2 and 3, I have taken exercise 3.3 up to 1 to question number 10. Questions are lengthy, so I can take only 5 to 6 questions in a video. I am taking question number 11 to 16 in this video. Watch carefully. I have prepared all these questions in advance so that I can save my time. I am taking straight to your question number 11. This is your question number 11. Read it carefully. E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC. This is initially your triangle. This is your triangle ABC. Look at this. This is isosceles triangle. ये आपकी isosceles triangle है. बात carefully आपको देखना है. An isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. With AB is equal to AC. This AB is equal to AC line. AC not AE. If AD perpendicular BC, if AD is perpendicular to BC, then this angle and this angle is equal to 90. EF perpendicular AC, EF perpendicular AC, then this angle and this angle is 90 degree. You can take either of them. Prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. ABD is this pink triangle and ECF is this somehow green triangle, including this one. Its angles opposite equal sides. Now I am using another information. AD perpendicular BC. AD is perpendicular BC, therefore AD is 90 degree. Simply this angle is 90 degree. EF perpendicular AC, therefore F is equal to 90. F is 90. अब हम आगे आए in triangle ABD and ECF. In triangle ABD and ECF, angle B is equal to C as sides were equal. Angle D is equal to F because these two lines were perpendicular. ये दो लाइनें perpendicular थी. So two angles of ABD are respectively equal to corresponding two angles of ECF. If two angles of a triangle are equal to corresponding two angles of other triangle, then triangles are similar by angle similarity. तो आपको इन ट्रायंगल्स में दो एंगल्स की इक्वलिटी देखनी थी. In this way, you can prove this ABD is similar to triangle ECF. I'm taking next question. ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है. I'm taking this question number 12. Be careful, I have two ways to solve it. मैंने दो शीट आपकी बनाई हुई हैं, इसमें से समझ नहीं आए तो नेक्स्ट वाले से और बताऊंगा. Look at this. Sides AB, BC and median AD. This triangle ABC in which side AB, BC full side and AD are respectively proportional to side QP, QR and median PM of triangle PQR. AD is also median in triangle ABC. Show that this full triangle ABC is similar to full triangle PQR. आपको तीनों साइड्स नहीं दी गई, कोई एंगल नहीं दिया गया. साइड प्रोपोर्शनल दो हैं, एक मीडियन प्रोपोर्शनल है. सो यहां स्थिति में हमें ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर करने हैं. हमारी कंडीशंस वही रहेंगी, या तो आप SSS से इसे सिमिलर करेंगे या SAS से या एंगल सिमिलरिटी से. अब इनमें से आप इससे करेंगे, ये फाइनली आपको पता लगेगा कि ये ट्रायंगल्स SAS से सिमिलर हैं. सबसे पहले
गिवन चीजें देखता हूं। हमें मिला है ट्राइंगल एबीसी और PQR, ABC एंड PQR। तो यहां जो साइड्स हैं AB, BC, AD, मीडियन AD है। These are two sides, side AB and BC, AB and BC and median AD of triangle ABC. I am taking sides and medians of triangle ABC in numerator, और डिनोमिनेटर में मैं साइड PQ, QR और मीडियन PM ले रहा हूं। रेस्पेक्टिवली शब्द लिखा हुआ है, यानी AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AD अपॉन PM होना चाहिए। मैंने ये सिस्टम से अरेंज कर दिया है। means two of the sides of triangle ABC and median of triangle ABC and median of triangle PQR, ये आपस में प्रोपोर्शनल हैं। ये ऐसा आपको दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के। आगे आते हैं, देखते हैं। कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं है, प्रूफ में आप आइए। AD इज मीडियन, AD इज मीडियन। यदि मीडियन है देन D इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यदि ये BC मान लीजिए 10 सेंटीमीटर होती, नॉट एक्चुअली, तो BD 5 सेंटीमीटर होती। दिस इज द रिलेशन ऑफ मीडियन। इफ AD इज मीडियन देन D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट है D, और BD की वैल्यू फिर BC की हाफ होगी, या BC का डबल 2 टाइम BD इज इक्वल टू BC होगा। आई हैव टेकन सिमिलर रिजल्ट। इफ AD इज मीडियन इन ट्राइंगल ABC देन 2 टाइम्स BD इज इक्वल टू BC। सिमिलरली PM is the median of PQR, therefore 2 times QM, 2 times this side QM is equal to QR. I have taken both these results. These are the results that AD and PM are medians. अब हमें ये गिवन मिला था, मैंने ऊपर से ये गिवन यों का यों कॉपी पेस्ट किया हुआ है। दिस इज गिवन। आई एम substituting value of BC and QR here. BC को मैं 2BD लिखूंगा, यहां लिखा हुआ है। QR को मैं 2QM लिख दूंगा, यहां लिखा हुआ है। सो 2 से 2 कैंसल आउट हुआ। इस तरह से हमने देखा कि AB अपॉन PQ। अब आप ग्रीन वाले ट्राइंगल में देखें, दिस इज AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, BD upon QM, AD upon PM, AD upon PM means ABD triangle and PQM triangle have 3 sides, AB, BD, AD, PQ, QM, PM. These are proportional. These 3 sides are proportional. यदि यहां मैंने डॉट स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है, AB के ऊपर सिंगल डॉट है, यहां सिंगल डॉट है, यहां डबल डॉट है BD पर, QM पर डबल डॉट है, ट्रिपल डॉट है AD पर, ट्रिपल डॉट है AD पर। आई एम आइडेंटिफाइंग माई साइड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इन ऑर्डर। सो इन द सेम ऑर्डर माई साइड्स आर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। दीज आर प्रोपोर्शनल, यानी AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM एंड AD अपॉन PM। यदि ऐसा है तो ट्राइंगल ABD विच इज ग्रीन इन कलर नाउ, ABD इज सिमिलर टू PQM बाई SSS। तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की यदि कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के प्रोपोर्शनल हों तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। यदि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल B शुड बी इक्वल टू Q, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये वाला एंगल B बराबर हो जाना चाहिए Q के, और यदि B एंगल Q के बराबर हो गया तो ABC और PQR में ये तो तुम्हें मिला था, मैंने मीडियन हटा दिए हैं। 2 साइड्स का रेशियो आपको बराबर मिला था, एंगल B इज इक्वल टू Q था। सो दीज 2 ट्राइंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर बाई SAS, क्योंकि 2 साइड का रेशियो हमें पहले से बराबर दिया हुआ है, एक इंक्लूडिंग एंगल हमने सिद्ध कर दिया है, इस वजह से ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। आई हैव प्रिपेयर्ड वन मोर इंटरेस्टिंग शीट ऑफ दिस क्वेश्चन यूजिंग कलर कॉम्बिनेशन। हो सकता है इसमें फास्ट मोड में आपको कम समझ में आया हो, तो
अगला उसमें मैंने थोड़ा सा इसको लिखना डिटेल कम कर दिया है और यहाँ जो प्रिंटिंग आप देख रहे हैं इसकी वो कलर कॉम्बिनेशन की है। गिवन याद करिए, साइड ए बी BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and median PM of triangle PQR are proportional. So I have written AB upon PQ here, BC upon QR here and median AD upon median PM here. This is given. ये आपको गिवन था, आपने शुरुआत में गिवन यहां लिखना। ये समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, फॉर्मेट पूरा नहीं है। टू प्रूव फाइनली आपको ये करना है, सिद्ध करना है आपको कि पूरा ट्रायंगल ABC फुल ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। ये आपको अल्टीमेटली फाइनली आपका रिजल्ट होना चाहिए। आई एम टेकिंग प्रूफ। Now look at me. This AD and PM are medians. AD and PM green color में शो हो रहे हैं। AD and PM are medians. Therefore, I have taken the same idea as previous one. Median का हम क्या सिद्धांत ले रहे हैं? 2BD is equal to BC. This BD is equal to half of BC or 2 times BD is equal to BC. You can take half of BC is equal to BD. उसमें कोई अंतर नहीं है। If BC and Q are 2 times BD is equal to BC and separately 2 times QM, this is ratio, 2 times QM is equal to QR. So given जो चीज थी वो यही है, ये दिया हुआ था आपको। यदि आपको फिर देखना है तो गिवन ये स्थितियां थी, मैंने यही कॉपी पेस्ट करके नीचे लिया हुआ है। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन, मैं यहां लिख देता हूं कि ये हमें मिला था। आई एम रिप्लेसिंग दिस BC बाई 2BD। यहां आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास स्टेटमेंट थी BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स BD। आई एम रिप्लेसिंग दिस BC बाई 2BD। QR is 2QM. I am replacing QR by 2QM and cancelling out this 2. So what will we get? आपको मिला क्या? देखें। अब आपको इन दो ट्रायंगल्स में अभ्यास करना है। मैं थोड़ा सा इसे नीचे ले लूं, हो सकता है मेरे फोटो के नीचे ये दब जाए। इन ट्रायंगल ABC and PQR, AB upon PQ, this side upon this side, BD upon QM. BD is this smaller side, not side of triangle ABC, it's side of triangle ABD. QM is this smaller side, not full QR. यहां से यहां तक आपका QM है। AD upon PM, AD 3 डॉट से दिखाया हुआ है, AD upon PM। मैंने यहां डॉट भी लगाए हुए हैं, यदि आप देखें तो AB और PQ के ऊपर सिंगल डॉट है, सिंगल डॉट वाली लाइन है। BD और QM के ऊपर मैंने डबल डॉट्स दिए हुए हैं, डबल डॉट वाली लाइनें हैं। AD और PM के ऊपर मैंने ट्रिपल डॉट्स दिए हुए हैं, ट्रिपल डॉट वाली लाइनें आपस में प्रोपोर्शनल हैं। ये यानी सभी लाइनें आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इनकी प्रोपोर्शनल हुई। Therefore, this triangle in blue color, light blue color ABD is similar to triangle PQM. ये जो ट्राइंगल ABD है PQM के सिमिलर हो गई है, क्योंकि 3 साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल by SSS similarity criterion. That's why angle B is equal to Q. I have taken this angle B is equal to Q. If angle B is equal to Q, तो हमारे पास AB upon PQ is equal to BC upon QR तो ऑलरेडी गिवन था। 2 of the sides are in the same ratio. 2 of the sides of triangle ABC and PQR, ये ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल PQR। तो ये दो साइड तो आपस में पहले ही प्रोपोर्शनल थी। मैं यहां सिंगल लगा देता हूं, थोड़ा सा
1 पे 1, 2 पे 2 क्रॉसेज कर देता हूं। ये ट्राइंगल ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल था। आई हैव प्रूव्ड एंगल बी इज इक्वल टू क्यू। सो टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, one triangle are proportional to two sides of other triangle PQR and one of the including angle is also equal. Therefore, these two triangles are similar finally. Triangle ABC is similar to PQR and your condition is SAS. I have taken it two ways. फॉर्मेट आपको बहुत बढ़िया तरह से रखना है। स्कोरिंग रखने के लिए आप फुल लिखेंगे, गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है, और फाइनली प्रूफ आप बहुत सिस्टमेटिक दें। नेक्स्ट क्वेश्चन समहाउ दिखाई देने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, अदरवाइज बेहद आसान सवालों में से ये एक है। हम आ रहे हैं, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC। आई हैव ट्राइंगल ABC, गिवन है ट्राइंगल ABC, ये मैंने लिखा हुआ है। D is a point on side BC. There is somewhere a point D such that this full angle A is equal to CDA और ADC। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। ध्यान दें, यहाँ D पर एक तरफा बना हुआ एंगल और यहाँ A पर बना हुआ फुल एंगल है। ये आपने सावधानी से देखना है, ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है। शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो यहां वास्तव में ये CA स्क्वायर कैसे आता है, हम आपको अब सिमिलरिटी का यूज दिखाएंगे। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ सिमिलरिटी। सो आई एम टेकिंग, गिवन आई हैव रिटन ट्राइंगल ABC एंड D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC such that ADC angle is equal to BAC. I have written this. To prove is given here. What should I do? मुझे इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। पहले ये जो ट्राइंगल यहाँ तो एंगल लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल्स को हम सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। जब हम इनको सिमिलर करने की कोशिश करते हैं तो मुझे मिला इन ट्राइंगल CAB एंड CDA। आई एम टेकिंग दिस नेम फ्रॉम हियर, CAB एंड CDA। आई एम टेकिंग एंगल CC कॉमन। D पर बना हुआ एंगल A पर बने हुए एंगल के बराबर है, और यहाँ CDA, यहाँ CAB। ये ट्राइंगल आपने सेम ऑर्डर में लेने हैं, यानी जब आप चलें CDA ट्राइंगल में तो C से होते हुए D से आप A की ओर जाएंगे। अब ये एंगल क्योंकि इक्वल एंगल है तो CAB लिखते हुए C से उसी एंगल, सेम एंगल से CAB के थ्रू आप इस तरफ जाएंगे। इस तरह से ये ट्राइंगल्स आपके सिमिलर होंगे। यदि आपके ये अल्फाबेट्स आगे पीछे होते हैं तो आप कॉरस्पॉन्डेंस का रूल नहीं निभा पा रहे और फिर आपका ये रिजल्ट नहीं आएगा। यदि ये नाम आप गलत लिख देते हैं तो फिर कोई चारा नहीं है। इन नामों का जो कॉरस्पॉन्डेंस सीक्वेंस थी वो आपने सीखनी होगी। सो दीज टू ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं। यहाँ CAB मैंने पहले लिखा है और CDA दूसरी बार लिखा है। यहाँ ये नाम सही होने चाहिए। सो ADC इज गिवन टू ABAC, this angle is given equal. Angle C is equal to C common in both the triangles. Therefore, CAB is similar to triangle CDA by angle-angle similarity. If two angles of a triangle are respectively equal to two angles of the other triangle, then two triangles are similar. By AA similarity हम तीन एंगल वाला पढ़ते थे, मैंने बताया था तीसरा एंगल बाउंड है, वो अपने आप बराबर आ जाएगा। अब यहां आपकी स्थिति आपको देखनी है। यदि मैं कुछ हिस्सा यहां ले रहा हूं, मैंने लिखा CAB ट्राइंगल, मैंने सिमिलर लिखा ट्राइंगल CDA। आई एम टेकिंग इट स्लो सो दैट यू कैन राइट रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। मैं इस ट्राइंगल की साइड्स सारी की सारी न्यूमरेटर में लिखूंगा, इस ट्राइंगल की सारी साइड्स डिनोमिनेटर में लिखूंगा। यहां लिखने का पैटर्न मेरा क्या रहेगा, CA AB एंड CB और BC, एक ही बात है। यहां लिखने का पैटर्न रहेगा। अब डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम उसी तरह रेस्पेक्टिवली, पहला CD, दूसरा DA
तीसरा फर्स्ट और थर्ड से CA, ये रेशियो आपको बराबर करना है। अब ये रेशियो हमारे पास यूजफुल नहीं है यहाँ। यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं, इसे और इसे मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ आप देखेंगे मैंने ये छोड़ दिया है, मैंने सेम ये रेशियोज लिखे हैं और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये रिजल्ट इज देयर, यही रिजल्ट आपको सिद्ध करना था। सो बहुत बढ़िया कोशिश करिए, दीज आर एप्लीकेशंस, और आगे जाके पाइथागोरस थ्योरम वगैरह में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ होने वाले हैं। नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 15, आई एम लीविंग क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम NCERT एज इट विल बी टेकन सेपरेटली। बात काफी लेंथ का और अनईजी करने वाला क्वेश्चन होगा आपको, सो उसको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सिंगल एक क्वेश्चन की। आप कोशिश करिएगा, पहले नहीं डरा रहा हूं, खुद देखेंगे तो महसूस करेंगे। आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन नंबर 15। Read it carefully. A vertical pole of length 6 meter casts a shadow of 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. आपको बताया गया 6 मीटर ऊंचा एक पोल, 6 मीटर ऊंचाई वाला हाइट वाला एक पोल 4 मीटर लंबी छाया ग्राउंड के ऊपर बनाता है। ठीक उसी समय एट द सेम टाइम यह लिखा हुआ है भाई, दोपहर में छाया छोटी हो जाती है, मॉर्निंग में और इवनिंग में छाया बड़ी हो जाती है। सो ऐसा सेम रेशियो आप तब लेंगे जब आप सेम टाइम ये मेजरमेंट करेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका वैलिड नहीं होगा। एट द सेम टाइम का मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन विल बी द सेम। आपका एंगल सेम होना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, सूरज का उन्नतांश जिसे सूरज द्वारा बनाया हुआ हम एंगल कहते हैं, वो बराबर होना चाहिए। कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। उसी समय एक टावर, अब मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले 6 मीटर लंबा मेरे पास ऊंचा टावर है, जमीन पर यह 4 मीटर ऊंची छाया बनाता है। छाया कब बनती है? जब आपकी डायरेक्शन सन की इस शैडो के एंड पॉइंट से इसकी टॉप लेकर आगे तक आपको सूरज दिखाई दे, यहां कहीं सन साइन करता है। अब ये सन की रेज जो डायरेक्ट आती हैं तो इसकी शैडो कास्ट करेंगी 4 मीटर लंबी। ठीक उसी समय सन से आने वाली रेज एक H मीटर ऊंचे टावर, बीच में एक टावर भी है, ये टावर की शैडो 28 मीटर लंबी हो रही है। तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है। अब हम देखेंगे क्या, मैं सिमिलरिटी का यूज कर रहा हूं इसमें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC, एंगल B इज इक्वल टू E एज दीज आर कॉल्ड वर्टिकल लाइंस 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई होती हैं ग्राउंड के साथ। ये सावधानी से आप ध्यान रखेंगे, वर्टिकल हाइट होती है 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई, तो ये भी B और E 90 डिग्री का एंगल रहेगा। एंगल C इज इक्वल टू C कॉमन, ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, दिस इज कॉल्ड सन सॉल्टिट्यूड। ये सन सॉल्टिट्यूड बोला जाता है उस एक ही समय सूरज की ऊंचाई, सूरज की रोशनी द्वारा बना हुआ एंगल। सो एंगल C इज इक्वल टू C कॉमन, एंगल B is equal to E, each 90 degree. Therefore, these two triangles, separately these two triangles, one is smaller ABC and other is larger DEC are similar by angle similarity. So, I have to take the same pattern. First, दो वर्टिसेज से बनी हुई साइड, सेकंड दो वर्टिसेज से बनी हुई साइड, फर्स्ट और थर्ड वर्टिसेज से बनी हुई साइड। इसी तरह ये आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे DE, EC और DC, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ये कॉरस्पॉन्डेंस आपको बनानी बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। क्या आपको AB मिली है? मिली है 6, DE मिली है, मैंने इसे H माना, लिख दिया। क्या आपको BC मिली है? मिली है, 4 लिख दिया। क्या आपको EC मिली है? मिली है,
28 लिख दिया, आगे की जरूरत नहीं है। आप 4 से 28 कैंसिल करेंगे और 7 6 48, ये मीटर्स में आपकी हाइट होगी टावर की। अब आपने देखा कि हमें टावर के ऊपर चढ़ना नहीं पड़ा। सिमिलरिटी गिव्स यू ए चांस टू मेजर द हाइट of a tree, of a tower or some high building without climbing on the top of it। उसकी छत पे चढ़े बिना, उसकी हाइट ऊपर से मापे बिना। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया आपको किसी भी अननोन हाइट को मेजरमेंट के लिए देता है, बशर्ते उसकी शैडो आपको मालूम हो। उसी समय आप एक मेजर्ड पोल की शैडो मापिए, 8 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर जो भी दिया हुआ है, उसकी शैडो उस समय आप माप सकते हैं। सो कोशिश करिएगा कि आपको ये आसानी से आ जाए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। ये भी लगभग आपका एक आसान सा क्वेश्चन है, कई बच्चों को कम समझ आता है, फिर भी सीरियसली सुनिए। AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC का मीडियन AD है और PQR का मीडियन PM है। ट्राइंगल ABC में मीडियन AD है और ट्राइंगल PQR में मीडियन आपका PM है। मीडियन की मैंने पहले परिभाषा बताई थी। मीडियन इज ए लाइन दैट डिवाइड्स मिड पॉइंट ऑफ ए साइड टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स। मीडियन इज ए लाइन दैट joins mid point of a side to its opposite vertex in a triangle। किसी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन मीडियन होती है। क्योंकि मिड पॉइंट है M, D मिड पॉइंट है, तो वही रेशियो मैं फिर लूंगा 2BD इज इक्वल टू BC, 2QM इज इक्वल टू QR। प्रीवियस आप देख चुके होंगे। सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR गिवन। प्रूव दैट AB upon PQ is equal to AD upon PM, means ratio of side ratio of corresponding sides is equal to ratio of corresponding median। ratio of medians, I am not writing corresponding, ये corresponding अंडरस्टूड है। सो साइड्स का रेशियो मीडियंस के रेशियो के इक्वल होता है। आपको ये बात सिद्ध करनी है। कई बार ये लाइनें ना लिख के एक स्टेटमेंट दी जाती है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन प्रूव दैट रेशियो ऑफ दिस मीडियंस, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये स्टेटमेंट लिख दी जाती है। बस आपको ट्रायंगल भी अपने आप नाम देने पड़ते हैं, मीडियंस भी अपने आप नाम लेने पड़ते हैं, और ये स्टेटमेंट गिवन टू प्रूव भी आपको खुद लिखना पड़ता है। उसमें थोड़ा सा मुश्किल फील करता है बच्चा, यहाँ ये देने के बाद थोड़ा सा इजी लगता है। ध्यान दें। सो आई एम टेकिंग ट्रायंगल ABC एंड PQR वंस अगेन। AD एंड PM आर मीडियन। ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं। सो आई कैन टेक रेशियो ऑफ देयर साइड्स AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। ये BC अपॉन QR क्या है? ध्यान से देखें। BC अपॉन QR इज 2BD अपॉन 2QM। 2BD अपॉन 2QM, 2 से 2 मैंने काट दिया। और एंगल B इज इक्वल टू Q है, एंगल B इज इक्वल टू Q है। क्यों? ट्रायंगल सिमिलर थे। देयरफॉर दिस स्मॉलर ट्रायंगल ABD एंड PQM, ABD एंड PQM आर सिमिलर बाय SAS। यहां आपकी दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग हो गई हैं। BD इज इक्वल टू, देखो AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM आपस में सिमिलर हैं। एंगल B इज इक्वल टू Q सिमिलर, सेम है। सो AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM, यदि ट्रायंगल सिमिलर थे तो ध्यान से आपने ये बात देखनी है,
कि ABD छोटा ट्रायंगल और PQM छोटा ट्रायंगल आपस में सिमिलर थे इन कारण से, और सिमिलर थे तो इन तीनों की साइड्स जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैं यानी AB अपॉन PQ लिखा हुआ है, BD अपॉन QM लिखा हुआ है, और फर्स्ट और थर्ड AD अपॉन PM। यहां हम क्या देख रहे हैं, ये बीच वाली लाइन छोड़ दीजिए, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये स्थिति आपके पास है, इसका रीजन मैं बता रहा हूं क्यों है, बाई SAS इन ट्रायंगल ABD एंड PQM रेशियो ऑफ टू साइड्स आर इक्वल एंड इंक्लूडिंग एंगल इज इक्वल, देयरफॉर इंक्लूडिंग एंगल्स आर इक्वल, आर ही सही है। ये स्थितियां अब आप यदि समझ पाए हैं तो मोस्ट वेलकम। अब ये आपका प्रूफ यहां मैं दे चुका हूं। This is the last question of this exercise. I will take 14th question in a separate video. So thank you very much for watching this video. Go through this video again and again. You will face a lot of problems. सुनने में ऐसा नहीं लगता, जब खुद करके देखोगे तो आपको परेशानियां आएंगी।